हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 5 बॉडी मूवमेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को जो क्लास 6 चैप्टर 5 है उसका जो टॉपिक हिंज जॉइंट है उसे स्टार्ट करना है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हमें ये स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Open and close a door a few times. Observe the hinge joint of the door carefully. Allow the door to move back and forth. तो यहाँ पे क्या करना है कि आप लोगों को जो डोर्स होते हैं उन्हें आपको कुछ बार ओपन करना और बंद करना है, और जो डोर के जो हिंज जॉइंट होते हैं, हिंज पॉइंट, उन्हें आप लोगों को केयरफुली देखना है और समझना है कि वहाँ क्या क्या हो रहा है। और फिर क्या है कि यहाँ पे एक एक्टिविटी 3 इसको ही पढ़ते हैं। Let us look at the different kind of movement allowed by a hinge. Make a cylinder with cardboard or thick chart paper as shown in figure 5.5. Attach a small pencil to the cylinder or by piercing the cylinder at the center. As shown, make a hollow half cylinder from cardboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily. The hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allow movement like a hinge. Try to move the rolled up cylinder. How does it move? How is this movement different from what we say with our constructed ball and socket joint? We saw this kind of movement at the elbow in activity 1. We have constructed figure 5.5 in different from a hinge, of course, but it illustrates the direction in which a hinge allows movement. The elbow has a hinge joint that allows only a back and forth movement. Figure 5.6. Can you think one more example of such joints? यानी कि आप लोगों को क्या करना है कि जो आपको एक सिलेंडर ले लेना है, को बना लेना है, कार्डबोर्ड का सिलेंडर, और उसमें एक रोल्ड, मतलब कि एक का पेपर को रोल्ड करके उसका सिलेंडर बना लेना है, और उसके बाद कार्डबोर्ड का आपको सिलेंडर बनाना है। उसके बाद आपको मतलब पेपर को रोल्ड करके आपको सिलेंडर पर एक हॉलो करना है, और वहाँ पे उसके अंदर एक बॉल डाल देनी है, और बॉल में भी एक हॉलो करके छेद करके उसके अंदर आपको एक पेपर को रोल करना है और उसके ऊपर लगा देना है, और फिर आपको उसको मूव कराना इधर उधर, तो वो काफ़ी इजीली मूव करेगा। ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वहाँ पे कौन सा जॉइंट लग जाएगा? हिंज जॉइंट लग जाएगा। हिंज जॉइंट क्या होता है कि जहाँ ये जो आप लोग फिगर 5.5 देख पा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अलाउड हिंज लाइक जॉइंट, यानी कि जो हिंज जॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है? जब आप डोर्स में देखा होगा आप लोगों ने, वो आगे और पीछे करने में हमें मदद करता है, वही होता है हिंज जॉइंट। तो ये जो आप लोग फिगर देख रहे हैं, ये जो आपको पेंसिल टाइप दिख रहा है, ये आगे जा रही फिर पीछे जा रही, आगे जा रही पीछे जा रही, यानी कि आगे जाना और पीछे आना, क्या ये हिंज जॉइंट कहलाता है। तो हमारा एक इधर यहाँ पे एक और जॉइंट है, वो है फिक्स्ड जॉइंट। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोस वी हैव डिस्कस्ड सो फार. The bones cannot move at these joints. Such joints are called fixed joints. When you open your mouth wide, you can move your lower jaw away from your head. Isn't it? Is not it? Try to move your upper jaw. Now, are you able to move it? There is a joint between the upper jaw and the rest of the head, which is a fixed joint. We discussed only some of the joints that connect part of our body. What gives the different part of their body different shape? If you wanted to make a doll, what will you make first? Perhaps a framework to give the doll shape before making its outer structure, isn't it?
All the bones in our body also form a framework to give a shape to our body. This framework is called the skeleton. How do we know that this is the shape of human skeleton? Human skeleton. How do we know the shape of different bones in our body? We can have some idea about the shape and the number of bones in some parts of our body, but feeling them. One we say could know this shape better would be to look at X-ray images of the human's body. Did हाँ, तो जो जॉइंट्स मतलब कि जो फिक्स जॉइंट होता है वो क्या होता है कि जो जॉइंट्स मतलब कि जो जॉइंट्स होते हैं जो कि फिक्स्ड ही रहते हैं, यानी कि वो मूव नहीं करते। जैसे कि हमारा जो हेड है वहाँ पे माउथ में है, वहाँ पे क्या करता है, जो हमारा अपर जॉ है वो मूव नहीं करता और जो लोअर जॉ है वही मूव करता है। जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग जैसे अपना मुंह खोलते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो नीचे वाला जो जॉ होता है वही खाली मूव करता है। आप लोग भी कर सकते हैं, यानी कि आपका जो नीचे वाला है मतलब कि पार्ट है जहाँ पे दांत है नीचे वाले पार्ट पे वही मूव करेगा और जो ऊपर वाला है वो मूव नहीं करेगा चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। क्योंकि वो एक फिक्स्ड जॉइंट है। ऐसे ही सिमिलरली क्या आता है कि और अगर आपको बोला जाए कि आपको बोन्स का या किसी भी आपको एक डॉल है उसका आपको एक डॉल बना लिया तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले उसका आउटर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आउटर स्ट्रक्चर मतलब कि पहले आप उसको एक स्ट्रक्चर देंगे फिर उसमें आप काम करेंगे। तो वैसे जो हमारी बॉडी है उसमें भी एक स्ट्रक्चर दिया गया है और उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। और ये स्केलेटन ये है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हड्डी यही है, हमारे अंदर की चीज़ यही होती है स्केलेटन। ये हमारे अंदर का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही हमारे अंदर का स्ट्रक्चर दिखता है बिल्कुल सेम। और फिर इसमें बाहर से फिर हमारी खाल, लीवर सिस्टम बहुत सारी चीज़ें होती है वो सब इसमें लगाए। अगर हम लोग अपनी बॉडी का ऐसे एक्सरे करवाएं तो हम लोग को पता चलेगा कि हमारी बॉडी अंदर से दिखती कैसे। जब भी आप लोगों का कहीं हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है, तो जब आप लोग एक्सरे कराते होंगे तो आप लोग को पता चलता होगा कि यहाँ से हड्डी टूटी है, यहाँ पर ये चोट लगी है। तो जब आपको ये चोट लगता होगा तो क्या होता होगा कि जब आप एक्सरे निकलवाते होंगे तो उसमें क्या एक्सरे कुछ इस टाइप का निकलता होगा जैसा आप इस फोटो में देख पा रही है, एक्सरे इमेजेस हैं। तो फिर डिड यू और एनीवन in your family ever have an x-ray of any part of your body taken sometimes when we are hurt or have an accident? Doctor use these x-ray images। यानी वही है कि जो अभी मैंने आपको बताई जो एक्सरे इमेजेस जो डॉक्टर्स लेते हैं वो कुछ इसी टाइप का होता है। जब भी आप लोग का हाथ पैर या फ्रैक्चर हो जाता है, चोट लग जाती है तो ऐसे लगता है। Bend your finger. Are you able to bend them at every joint? How many bones does your middle fingers have? Feel the back of your palm. It seems to have many bones. Isn't figure 5.9? Is your wrist flexible? It is made up of several small bones called carps. What will happen if it हैज ओनली वन बोन? यानी यहाँ क्या होता है कि आपकी जो मिडिल फिंगर होती है आप लोग अपनी फिंगर को बेंड करें आगे की तरफ। जब आप लोग मुट्ठी बंद करते होंगे तब तो बन जाती होगी, लेकिन आप उसी अपने फिंगर्स को पीछे की तरफ जब मूव करेंगे तो वो पीछे की तरफ मूव नहीं करेगी क्योंकि वहाँ पे बोन्स होती हैं। आपकी जो मिडिल फिंगर है उसको आप लोग ऑब्जर्व करें और बताएं कि उसमें कितनी बोन्स है। और जब आप जो पाम है, जो हाथ होता है, हथेली का आप पीछे देखेंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या कि आप लोग को दिखाई पड़ेगा कितनी हड्डियां हैं। यानी जिस साइड आपके नेल्स होते हैं उसी साइड आप पाम को देखिए तो वहाँ पे आपको पता चलेगा आपको कितनी सारी हड्डियां हैं। अगर क्या हो कि अगर खाली हमारे जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं उन्हें हम लोग कार्ब्स कहते हैं, जो लिखा CARPLES।
इन्हीं को हम लोग कार्ब्स कहते हैं, जो छोटी छोटी हड्डी हमारे ये बोन्स में लगी होती है, जो फिगर 5.9 में है। ये हमारे हैंड की हड्डियाँ है। तो ये जो हैंड की हड्डियाँ हैं, यहीं पे क्या मतलब कि आप लोग इनको पीछे करके ऑब्जर्व करिए और वो देखिए, अगर वहाँ हाथ में खाली एक ही हड्डी हुई तो क्या होगा। अगर खाली एक ही हड्डी हुई तो क्या होगा। तो आप लोगों को ये ऑब्जर्व करना है और आपको ये पता चलेगा फिर यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे हमारी एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4। Take a deep breath and hold it for a little while. Feel your chest bones and the backbone by gently pressing the middle of the chest and back at the same times. Count as many ribs bones of the chest as possible. Observe figure 5.10 carefully and compare with what you feel of the chest bones. We see that the ribs are curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. This is called the rib cage. There is 12 ribs on each side of chest. Some important internal part of our body lie protect inside this cage. Ask some friends to touch their toes without bending their knees. Starting from the neck, move your fingers downwards and the back of your friend. What you feel is the backbone. It is made up by many small bones called vertebrae. The backbone consists of 33 vertebrae. The figure 5.11. The rib cage is joined to these bones. If backbones was made up of only one long bones, will your friend be able to bend? Make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall. Do you notice two bones on the back are prominent where the shoulders are? They are called shoulder bones. Observe figure 5.13 carefully. This structure is made of pelvic bones. They enclose the portion of your body below the stomach. This is the part you sit on. यानी कि क्या होता है कि जो हमारे जो जब आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा, जब भी हम लोग डीप ब्रीथ लेते हैं यानी लंबी सांस लेते हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी जो चेस्ट होती है वो काफ़ी फूल जाती है। अभी देखिएगा, मैं सांस लूँगा, मेरी जो चेस्ट है वो काफ़ी फूल जाएगी। 1 2 3 स्टार्ट। तो जो मेरी चेस्ट है वो काफ़ी समय फूल गई है, क्योंकि मैंने जो अपनी ब्रीथ है उसको अभी अंदर रख रखा है। तो इससे क्या होता है कि जो मेरी जो चेस्ट है इस समय काफ़ी फूल चुकी है। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो हम सांस लेते हैं वो किसकी मदद से लेते हैं। वो हम लोग जो हमारा जो लंग्स होते हैं उनकी मदद से हम लोग सांस लेते हैं। तो जो लंग्स होते हैं, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, रिब केज होती है। जो आप लोग देख पा रहे हैं एक केज जैसा स्ट्रक्चर, यही होता है रिब केज। तो इसके इस साइड और इस साइड हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। ये आप लोग फिगर इसमें देख पा रहे होंगे। अभी अंदर से इधर तो शोल्डर का दिखाया है, लेकिन इसमें जो रिब केज है इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो लंग्स होते हैं वो होते हैं, जिससे जो हमारा हमें चोट वोट लग जाए तो हमारे लंग्स में डायरेक्ट अटैक ना हो जाए, तो ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं। आप लोग अपनी हड्डियाँ छूते होंगे ऐसे अपने छाती में और बोलते होंगे जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। तो जो ये जहाँ मारते हैं ये सब रिब केज ही है। ये रिब केज क्या होता है कि जो हमारे लंग्स होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करता है। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो क्या फूल जाते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं। अब लंग्स फूल जाते हैं तो वो किसको, रिब केज को ऐसे फुला देते हैं। तो जो हमारी रिब केज है ये इसलिए यहाँ पे फूल जाती है। अगर आप अपनी कमर के थोड़े से ऊपर आप टच करेंगे और फिर सांस लेंगे, तब क्या देखेंगे कि आपकी जो रिब केज है वो फूल रही है। जब भी अभी देखना, फिर से मैं लूँगा सांस, तो जो मेरी एक कमर वाली साइड है वो वहाँ पे मेरी रिब केज फूल जाती है। तो यही होता है रिब केज। अब फिर क्या होगा कि आप अपने फ्रेंड के पास जाए, तो जो हमारे रिब केज है उसमें क्या बता देता हूँ कि जो रिब केज होती है वो किससे बनी होती है, रिब से बनी होती है। और उसमें टोटल 12 रिब्स, यानी कि
इस साइड 12 और इस साइड 12 आप लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि इस साइड 12 और इस साइड 12 रिब्स होती है जिनसे हमारा रिब केज बनता है। और रिब केज का मतलब तो बता ही दिया। फिर क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के पास जाना है। फ्रेंड के पास जब जाएंगे तो उसको आप बोलिएगा कि जो आप है मतलब कि जो एक एक्सरसाइज ये होती कि जिसमें आपको अपनी बॉडी को मतलब कि बिना मोड़े अपने हैंड्स को अपने टोज में टच कराना होता है, वो एक्सरसाइज कराने को कहिए। और फिर जब वो झुकेंगे तो वहाँ पे आप लोग उनकी पीठ में देखेगा कि एक बोन, बहुत लंबी सी बोन होगी और वो दिखेगी। वो क्या होगी, वो होती है बैक बोन, यानी कि रीढ़ की हड्डी, बैक बोन। और बैक बोन किससे बनी होती? बैक बोन बनी होती बहुत सारी छोटी छोटी बोन से, जो कि होती हैं, कौन सी बोन्स होती हैं, जो कि 33 बोन्स होती हैं। और उन्हें क्या कहता है, वर्टेब्रे कहता है। वर्टेब्रे छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनसे क्या हमारी बैक बोन है वो बनी हुई है। और ये बैक बोन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इसी के दम पे हम लोग खड़े होते हैं, मतलब कि खड़े होते हैं, बैठ पाते हैं अपने टेक लेकर के, बिना किसी टेक के से बैठ पाते हैं। और फिर क्या है कि जो शोल्डर है, ये शोल्डर बोन्स आप लोग जानते ही होंगे कि जो अभी मैंने आपको जब हिंज जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट पढ़ रहे थे, तो जब हम लोग बॉल हिल करते हैं तो ये जो हमारी जो हाथ घूमता है ना, ये हमारी जो घूम रहा है ना, तो यही होता है हमारी शोल्डर बोन। ये जो हम लोग शोल्डर के जो एक्सरसाइज होती है, शोल्डर को ऐसे घुमाना होता है, वो हम लोग शोल्डर ही के लिए करते हैं। ये जो हमारा शोल्डर होता है ये भी एक वो नहीं है, आपको पता ही होगा। फिर क्या होता है कि जो हमारा हिप होता है, हिप मतलब कि जिस जिस हिप बोन, वो बोन होती है जब भी आप लोग कहीं पर बैठते हैं तो आप हिप बोन के ही मदद से बैठ पाते हैं, हिप बोन के ही ऊपर आप लोग बैठते हैं। तो जो हिप बोन बनी होती है वो पेल्विक बोन से बनी होती है, और ये हमारी पीछे साइड होती है जिसके दम पे हम लोग बैठ पाते हैं। तो क्या है, स्कल इज मेड, मतलब कि जो हमारा स्कल है वो बहुत सारी बोन से बना हुआ है, और वो सारी बोन जॉइंट है, एक दूसरे से जॉइंट है। और जो स्कल होता है, स्केलेटन तो हमारी पूरी बॉडी हो गई, और स्कल क्या, ये जो हमारा फेस है, आप लोग देख पा रहे हैं ऐसा दिखता है हमारा फेस। अगर इसमें आंखें लगा दी जाए, नाक लगा दी जाए, और बाल आल उगा दिए जाए, और इसमें खाल लगा दी जाए, तो ये हमारी तरह बिल्कुल दिखेगा। फिर क्या है, सम एडिशनल पार्ट ऑफ स्केलेटन दैट आर नॉट सो हार्ड, दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, दे आर कॉल्ड कार्टिलेज। यानी कि वैसी चीज़, मतलब कि जो बोन्स होते हैं हमारे स्केलेटन पे, वो जो आसानी से मुड़ जाती है, यानी कि जो हमारी बोन्स होती है वो तो मुड़ती नहीं आसानी से, लेकिन हमारे स्केलेटन में कुछ ऐसे भी बोन्स होते हैं जो कि ईजिली मुड़ जाती हैं। तो वो बोन्स कौन सी कहलाती हैं? वो कार्टिलेज कहलाती हैं। फील योर ईयर, डू यू फील, यानी कि जो हमारी ईयर्स होते हैं, कान, उन्हें जब हम लोग ऐसे मोड़ते हैं, बेंड करते, तो वो ईजिली मुड़ जाते हैं। लेकिन जो हमारी कान है वो भी उनमें भी बोन्स है, तो वो कौन सी बोन्स हुई? वो बोन्स हुई कार्टिलेज बोन्स हुई। यानी कि जो हमारे कान में बोन्स होती है वो कौन सी बोन्स होती हैं? वो बोन्स होती हैं कार्टिलेज बोन्स होती हैं। तो जो ऊपर की जो चीज़ होती है, जो हार्ड होता है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपर कार्टिलेज। और जो नीचे वाला होता है वो क्या कहलाता है? ईयर लोब कहलाता है। यानी कि जहाँ पर लड़कियां लोग बाली पहनती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लोब। You do feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe, but not as hard as a bone, is it? This is cartilage. Cartilage is also found in the joints of the body. We have seen that our skeleton is made up of many bones, joints, and cartilage. You could feel, bend, and move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. We have learned about the bones in your body and about joints that help us move in different ways. What makes the bones move the way they do? Let us make a fist with one hand. Bend your arm at the elbow and touch your shoulder with the thumb. Do you see any changes in your upper arm? Touch it with the other hand. Do you?
Do you observe a swollen region in the upper arm? This is a muscle. The muscle bulged due to contraction. It's become smaller in length. Now bring your arm happen to muscles. It is still contracted. You can observe similar construction of muscles in your leg when you वॉक और रन। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो आपका जो ऊपर वाला पार्ट होता है कान का वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होता, लेकिन जो नीचे वाला लोब होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। और जो हमारा स्केलेटन्स है, बोन्स होती हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हम लोग जहाँ भी चल पाते हैं, खेल पाते हैं, ये सब हम लोग किसकी मदद से करते हैं? ये सब हम लोग जो हमारी बोन्स है इन्हीं की मदद से हम लोग करते हैं। ये हमारी बोन्स हम लोग आ रहा है जो हाथ है इनको ऊपर कर लेते हैं, इनको नीचे कर लेते हैं, यहाँ घुमाते, इधर लेट जाते, इधर चलने लगते हैं। तो किसकी वजह से करते हैं? हम लोग बोन्स की मदद से ही करते हैं। तो क्या है कि जो स्लोवन रीजन होता है अपर पार्ट, यानी कि जो हमारे अपर टच इट विद द विद योर हैंड, यानी कि जो हमारा हैंड होता है उसका जो अपर पार्ट होता है उसे आप लोग स्लोवन रीजन मतलब कि उसको आप ऑब्जर्व करिए। वो क्या होता है? वो मसल्स होती है, यानी कि जो हमारा अपर पार्ट होता है जहाँ पे लोग कहते हैं ये देख मेरी बॉडी, जहाँ पे लोग अपनी बॉडी दिखाते हैं, अपने ट्राइसेप्स बाइसेप्स, वो सब क्या होता है? वही होती मसल्स। ये मसल्स होती हैं हमारी। ये जो हैंड का अपर पार्ट होता है ये क्या कहलाती हैं? ये मसल्स हमारी कहलाती हैं। द मसल्स ब्लश ड्यू टू कॉन्स्ट्रक्शन इट्स बिकम स्मॉलर इन लेंथ। और जब हमारी जो मसल्स होती है छोटी हो जाती है तो क्या कहलाती है? वो कॉन्स्ट्रक्शन कहलाती है। तो यही चीज़ थी इसमें कुछ muscles work in pair. When one of them contracts, the bone is pulled in that direction. The other muscles of the pair relaxes to move the bones in the opposite direction. The relaxed muscle contracts to pull the bones towards original position, while the first relaxes. A muscle can only pull; it cannot push. Thus, two muscles have to work together to move a bone. Are muscles and bones always required for movement? How do other animals move? Do all animals have bones? What about an earthworm or a snail? Let us study the manner of movement that is the gait of some animals. तो यहाँ पे क्या है कि जो मसल्स होती हैं वो पेयर में काम करती है, यानी कि जब भी हमारी कोई मसल्स कॉन्स्ट्रैक्ट हो जाती है तो दूसरी मसल आकर के वर्क करने लगती है। और ये मतलब कि जो मसल्स होती है काफ़ी अच्छी होती है और ये हमको रिलैक्स्ड मसल्स होती है वो हमारी बॉडी को पुल आउट करती है, अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है उसी में हमें रखती है। तो ये जो कुछ था मसल्स और बोन्स ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अगर हम लोग को ये एनिमल्स के बारे में पढ़ना है कि हर एनिमल्स के पास मसल्स या बोन्स होती है तो कोई कहेगा हाँ, लेकिन जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनके बारे में क्या? उनमें तो ना बोन्स होती है ना मसल्स होती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जो टॉपिक है हमारा गेट ऑफ एनिमल्स, तो ये जो हमारा टॉपिक था अभी ये हमारा ख़त्म हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गेट ऑफ एनिमल्स ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।